Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on Be an Ironman. Your sport, your story. To inspire you and say age has no limit and give you confidence to get up and move. To learn more about multi-sport race that involves swimming, cycling and running across long distances. To awaken your child's inner instinct by our speaker Hemant Parmar. To help kids to be patient and focused on target, to build their strong willpower, our chairman Shri Subhashji Parmar has inspired and guided us. To build tomorrow's star athlete, let's begin with our today's fascinating webinar. And a glorious morning to everyone. With warm greetings, I, Sonal Khabia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, feel highly privileged to welcome you all to the series of webinar Vijay Vallabh Sunday Hour. With the inspiration and guidance from our chairman, Sri Subhashji Parmar sir, and members of Education Committee have organized today a very fascinating Facebook Live webinar, Mr. Hemant Parmar sir, on the topic Be an Iron Man, Your Sport, Your Story. Our vision is to empower the youth and bring all the stakeholders and learn about various aspects. Sports lays the foundation of healthy individual and develop their capabilities and personalities in building a well-developed and resilient nation. They are essential to enjoy the overall health and well-being. So they are recommended for everyone, irrespective of their age. खेल कूद का करो विचार, यह देता है स्वस्थ जीवन जीने का. So a sport, it will teach you how to win honorably, lose gracefully, respect authority, work with others, management of time, and stay out of trouble. So, everyone, let's dive into our today's remarkable and interesting journey and absorb maximum knowledge on the topic Be an Iron Man, Your Sport, Your Story. I'm sure it will help you and give you the jump start to your day. Now, I request our respected principal, Mrs. Nehal Khataukar, Madam, to brief us about our school. Over to you, ma'am. Good morning to one and all. It's a great pleasure to welcome you all to Vijay Vallabh Sunday Hour. From the bottom of my heart, I thank our renowned speaker, Mr. Hemant Parmar, ex-student of our school, for accepting our request and ready to preside our today's webinar on an interesting topic, Be an Iron Man. It is rightly said, sports improve your mind and mood. It also improves your concentration. Sports reduces stress and depression. It improves sleeping habits. It also helps you maintain a healthy weight. It boosts your self-confidence. It has been linked to leadership traits also. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School, along with the academics, give equal importance to sports. Our students participate in the various school and inter-school events like swimming, taekwondo, boxing, running, and various team activities like volleyball, basketball, kho-kho, kabaddi, and bring laurels to our school. We always motivate our students to participate in the various sports of their interest. With this, I wholeheartedly thank our chairman, Sri Subhashji Parmar, for the motivation and guidance given to us to arrange such an innovative and interesting webinar. Lastly, I would like to tell all my viewers, trust yourself that you can do it and get it. If you dream it, you can do it.
It's never too late to achieve anything. Do the best you can. So let's move further and get enlightened on today's interesting topic, be an Iron Man. Thank you. Over to you, Sonal. Thank you, madam. Now, it's an honor and privilege for me to introduce and welcome our today's guest of honor, Mr. Hemant Parmar, for Vijay Vallabh Sunday Hour. Sir is very passionate athlete, Ironman winner of triathlon, and his journey of Ironman started in 2017. Sir has come and back to back in 2022 on 6th August in Estonia and on 13th August in Finland. Proudly, I would like to say that Sir is the past student of Acharya Sri Vijay Vallabh School from the batch 1991. With attitude of determination and dedication, Sir is a renowned industrialist by profession and runs a business by the name of Basic Doors Private Limited. Along with business, Sir also shows interest in many social work. Sir is a trustee at Sri Shantinath Seva Sanstha at Sangamner and also a part of an old age home and hospital in association with H.P. Desai Pune. Sir is a former secretary at Sadi Ranakpur and also a member of Jain International Trade Organization. So, we are indeed very fortunate to have you with us this lovely morning. Now, let's watch a video showing a journey of Mr. Hemant Parmar sir.
marathon in Mumbai. Full marathon is of 42.2 kilometers. So I registered for Mumbai Marathon. I completed my first full marathon in 5 years 19 minutes. After completion the marathon, again I started my normal routine of gymming. Then I came to know of triathlons, and that time luckily Ironman was going to be held in India. So I thought, when it is going to be held in India, now let's target Ironman. Because swimming, cycling and running, I knew it how to do swimming. Cycling I have to do daily. For coming in the school also I have to come and cycle. So I just thought there is time of 9 months. So let us try and now do registration for an Ironman. So always I was aiming higher and trying to do some new things. So luckily it was going to happen in India. So I registered for half Ironman that was happening in Goa. I started my preparation for it. 9 months time was there, slowly and steady. So the Ironman, I just knew that swimming is there, cycling is there. So from purchasing the bicycle, I started my journey. The cycles were not cheaper. We needed a road bike. They were all 1 lakh plus bikes. So slowly and steady, I decided and I went step by step. I completed my first half Ironman in Goa in 7 hours 15 minutes. The cutoff limit was 8 hours and 30 minutes. After completing the first half Ironman, I just again started my routine, and now again the question was, what next? So I thought, just after I have completed comfortably half Ironman, let's target now for full Ironman. So it was again a big step ahead. I decided I should go for a full Ironman. In half Ironman, the distance is totally half of full Ironman. In half Ironman, the distance is 1.9 kilometers swim, 90 kilometers cycling, and 21.1 kilometers of running. The next target I decided, let's go for full Ironman. The full Ironmans are all done in out of India. Luckily, the half Ironman first time it was in the Goa. When I decided to register for a full Ironman, I registered it for Kazakhstan. But after that, in 2019, COVID hit all over the world, and slowly, all the races all around the world were getting postponed. So 2019, 2020, we just practiced and no races was happening. So luckily, when I joined Rashtam coaching, I am training under Dr. Kaustubh Radkar, who is 32 times Ironman finisher. We are lucky to train with the sir, and I started my journey training with Rashtam. Luckily, I came to know that the race was happening in Hamburg and visas were open all over the world. So I registered for Hamburg race and I started my preparation for Hamburg. So luckily the registrations were open. I registered for the race. I applied for visa and I got my visa done. So everything was clear. We were allowed to train. तो मैंने अपना फुल आयरमैन का निश्चय बना लिया था कि मुझे फुल आयरमैन करना है, और मैंने डॉक्टर कस्तूर राडकर के अंडर ट्रेनिंग भी काफी सारा ले लिया था. उसी तरह 4 महीने हमारे पास थे कि फुल आयरमैन को पूरा तैयारी करना है. वो हिसाब से हमने हमारा पूरा तैयारी किया. And I completed my full Ironman at first full Ironman at Hamburg in 14 hours 19 minutes. So again, it was a big dream achieved. I dreamed it and I achieved it. Slowly and steady again, after coming from Hamburg, we decided that I will continue this thing going on. Again in 2022, I completed 2 Ironman races, one in Finland and one in Estonia. इस बार मैंने सोचा था कि कुछ अलग करते हैं, इसीलिए मैंने 2 रेसेस बैक टू बैक किए. एक रेस मैंने किया था 6 अगस्त को जो इस्टोनिया में था, एंड उसके बाद दूसरा जो मैंने किया था वो था 13 अगस्त को जो कि फिनलैंड में था. दोनों ही रेसेस कंफर्टेबली मैंने पूरे किए. तो मेरी जर्नी थी, मैंने स्पोर्ट्स में आया मैं 2017 में. मैं आया था खाली कि मुझे मेरा वेट रिड्यूस करना है, बट धीरे धीरे करते मेरे को एक एक समझते गया कि स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स है,
उसमें अपने लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, और एक एक गोल अचीव करने के बाद मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे मालूमात पड़ते गए कि ऐसे भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो आयरन के इवेंट्स हैं, जब तक मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे करके मैंने मेरा 105 102 किलो वेट का, मैंने अभी आई एम वेइंग अराउंड अबाउट 68 69 केजीज। तो मैंने इन ऑल 32 केजीज मेरा वेट रिड्यूस किया। एक पॉइंट मेरा माइंड में ये भी था कि मैं अगर 102 किलो था जब मुझे चलने को भी नहीं आता था, लोग कहते थे अरे इतना मोटा है तुझे चलने को भी नहीं आता है। और मेरे फैमिली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकल हिस्ट्री है। मेरे मदर फादर को, मतलब मेरे मदर को हैवी डायबिटीज था। माय फादर एक्सपायर्ड when 91 due to heart attack. My uncles had heart attacks. So I decided the day that नहीं, अभी मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मैंने कुछ किया नहीं तो I will follow the same family symptoms. So that triggered me कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए, और उसी से मैंने अपना वेट कम करना शुरुआत किया। धीरे धीरे मेरे को पता चला मैराथन्स होते हैं, आयरन मैन होते हैं, तो मैंने इसमें स्पर्धा में भाग लेना शुरुआत किया। अपने लाइफ में स्पोर्ट्स का बहुत ही महत्व है। मेरे पिताजी मुझे हमेशा स्पोर्ट्स खिलाते थे, सुबह वॉकिंग करने के लिए इंस्पायर करते थे, लेकिन वो जल्दी एक्सपायर होने के कारण मैं जल्दी बिजनेस में आया और मेरे हेल्थ के करीब मैंने निगलेक्शन चालू किया था। पहले रोज हफ्ते में 2-3 दिन बाहर खाना, पार्टी करना, यही मेरा लाइफस्टाइल था। वड़ा पाव खाओ, मिसल खाओ, शाम को पार्टीज करो, दोस्तों को मिलो। बट जब से मैंने मेरा फिटनेस का जर्नी चालू किया, मुझे खाने की सही ढंग से आदत पता चली कि क्या खाना चाहिए, क्या सही ढंग से खाना चाहिए, हाउ टू डू प्रॉपर डाइट, व्हाट हाउ टू ईट हेल्दी, हाउ चेंज। इसमें मेरे खुद में मैंने बहुत अनुभव लिया है और मुझे मेरे खुद में बहुत बदलाव आया है। मेरा अभी लाइफ में एक ही गोल है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करूं कि वो अपने हेल्थ के करीब ध्यान दे। रोज सुबह कोई भी अपना, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स, आपको जो भी इच्छा हो, स्टूडेंट्स को, जैसे बच्चों को अभी स्कूलिंग है, आपको जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, आप उसे अपना पैशन फॉलो करिए। आई स्टार्टेड माई फॉलोइंग माई पैशन एट द एज ऑफ 46। मैंने मेरे को जानकारी लिया और अभी ये पैशन में आगे कंटिन्यू रखने वाला हूँ, और मैं इसमें आगे 2-3 माइलस्टोन है वो मुझे अचीव करने हैं। तो आप अपना पैशन फॉलो करिए। आपको लगता है कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, आपको लगता है आप रनिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, यू फॉलो योर पैशन। बल्कि हर एक आदमी, मतलब स्टूडेंट्स हो, कोई भी लाइफ में हो, एवरीबॉडी शुड गिव 1 आवर टू योर बॉडी इन द मॉर्निंग। आप वॉकिंग करो, फ्रेश एयर में फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। ये सब करने से आपका लाइफ चेंज हो जाता है। आपको पेशेंस कैसे रखने का, ये सब सीखते हो आप। हर एक कोई भी, मतलब अगर मेडिकल से कोई फाइट कर रहा हो, और इसमें एज कोई बात नहीं है, आप कभी भी अपना पैशन फॉलो करना चालू करते हो, स्लोली एंड स्टेडी आप अपना जर्नी शुरुआत करिए, यू कैन अचीव इट। सो ड्रीम बिग। सबसे बड़ा है कि आप अपना ड्रीम बिग रखिए, स्लोली एंड स्टेडी उसके तरफ आप चलना चालू करिए। धीरे धीरे करके आप अपना गोल अचीव करेंगे। इसमें आपको पेशेंस बहुत रखना है कि आज मैंने ये किया है, मेरा कुछ भी वजन कम नहीं हो रहा है, मैं सही ढंग से कर रहा हूँ लेकिन मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्लोली एंड स्टेडी यू विल गेट द रिजल्ट। इफ यू गिव योर 100%, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह आप जैसे मैं खुद विजय वल्लभ स्कूल से हूँ। मैं स्कूल में बहुत नॉटी स्टूडेंट था। आई वॉज प्लेइंग कबड्डी इंटर स्कूल फॉर द स्कूल। आफ्टर गोइंग टू कॉलेज आई स्टार्टेड माई लाइफस्टाइल चेंज। तो वापस मुझे स्पोर्ट्स के बारे में, जब मेरे बिजनेस से फ्री हुआ, आई स्टार्टेड डूइंग स्पोर्ट्स। आपको यही कहना है कि अपना जो भी पैशन है आप उसे फॉलो करिए। कोई भी अपना पैशन, उसको आप साथ में लेके चलिए, धीरे धीरे उसमें आप कामयाबी 100% हासिल करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir, for all your valuable views. And the journey you shared, sir, it was really remarkable. It is rightly said that there is never an end when you turn your passion and keep achieving your set goals
step by step. Now, I hand over the session to Mr. Abhijit sir for the question answer session. Over to you, sir. Thank you, ma'am. What an inspire story it is. आज हम सब ने जाना है, उम्र हमें कुछ भी काम करने से रोक नहीं सकती। अगर हमारे मन में सच्ची निष्ठा हो, एक ध्येय आगे हो, तो हम उसे हासिल कर ही सकते हैं। ये हमने आज देखा है। Now we begin our most interesting session, which is a question and answer session. Now I hand over Ravina Chaudhary to ask question to the sir. Over to you, Ravina. My name is Ravina Chaudhary. I am in standard 6A. My question to you is, what motivated and inspired you to become an Ironman? Nice question. आपको आयरमैन बनने के लिए किस बात ने प्रेरित किया है? Over to you, sir. जब मैंने मेरा जर्नी चालू किया था वेट रिड्यूस करने का, मैंने वेट रिड्यूस करते करते एक दिन मेरे बच्चे के रूम में उसने एक पिक्चर लगाया था, उस पर साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग का पोस्टर था। तो मैंने उसको पूछा ये क्या है, तो उसने मुझे जब बताया कि डैडी दिस इज एन आयरनमैन इवेंट, इसमें आपने को 4 किलोमीटर स्विम, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42 किलोमीटर रन करना चाहिए। उस टाइम मुझे जानकारी मिली कि ये आयरनमैन इवेंट ऐसा होता है, और उसी मेरा लड़का बोला पापा मुझे ये करने का है। तो वो फोटो से मैं खुद इंस्पायर हुआ और मैंने खुद मेरा जर्नी चालू किया उसके अगेंस्ट, एंड आई अचीव्ड इट। मतलब कोई भी छोटी चीज हमें बड़ी काम करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। Now I request Avni Nimbalkar to ask question to the sir. Over to you, Avni. My name is Avni Nimbalkar. I am in standard 6A. My question to you is, what mindset we have to prepare to become an athlete? एथलीट बनने के लिए हमें किस प्रकार की मानसिक तैयारी करनी चाहिए? ओवर टू यू सर। एथलीट बनने के लिए आपने को अपने आप पे कंट्रोल चाहिए, अपना माइंड अपना को बहुत शांत चाहिए, पेशेंस चाहिए, अपना 3Ds डाइट, डेडिकेशन और अपने कंट्रोल, ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा अपने को अपने में विश्वास चाहिए कि ये मैं कर पाऊंगा, वही सबसे बड़ी ताकत है। अपना फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा एथलीट के टाइम यानी रेस के टाइम आपका माइंड प्ले करता है। इफ योर माइंड स्टार्ट प्लेइंग विद यू, यू शुड नॉट गेट डिस्टर्ब विद इट। सो सबसे ज्यादा माइंड है कि अपना माइंड कि ये मैं कर सकता हूँ। अगर आपने ठान ली कि ये बात आप कर सकते हैं, तो आपको कोई भी पावर रोक नहीं सकती है, एंड यू कैन अचीव इट। विल पावर होना बहुत जरूरी है। आप तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो, लेकिन आपको करने की चाह नहीं होगी तो आप वहां तक जा नहीं सकते। लेकिन आप कमजोर हो, लेकिन आपके मन में ठान लिए कि मुझे बस करना है और करना ही है, देन योर बॉडी विल स्टार्ट चेंजिंग। नाइस। नाउ I request Rajveer Singh Rajpurohit to ask next question to the sir. Over to you, Rajveer. My name is Rajveer Singh Rajpurohit. I am in standard 8A. My question to you is, how much time you devoted for doing practice in a day? आपने एक दिन में कितना समय अभ्यास के लिए समर्पित किया है? Over to you, sir. जिससे ये ट्रायलॉथन है, ये लॉन्ग जर्नी है। आपको एक इवेंट के लिए तैयारी करने को करीब 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। तो धीरे धीरे स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ताकत या अपना विल पावर जो है, और वो जो जैसे मैं आयरनमैन करता हूँ, आयरनमैन एक दिन में 16 घंटे आपको ग्राउंड पे रहना पड़ता है। पानी से बाहर निकलो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो। तो ये जो भी ताकत आपको डेवलप करनी है, ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। आज अगर मैं बोलूँ कि आज मुझे आयरनमैन करना है और मैं इमीडिएटली रेस में पार्ट लूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 6 महीना का इसमें हमको टाइम देना पड़ता है।
धीरे धीरे करके वीक में 4-5 दिन हम दिन में सुबह 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। वीकेंड के अंदर जैसे इवेंट नजदीक आता है, वीकेंड्स के अंदर हमारा ट्रेनिंग का लोड बढ़ता है। जैसे सैटरडे संडे हम 4-4 5-5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन रूटीन के अंदर वीक वर्किंग डेज के अंदर हम खाली दिन में 1.5-2 घंटा देते हैं। लेकिन इट टेक्स टाइम ऑफ 6 मंथ टू टेक एन बिग इवेंट। तो 6-7 महीने की तैयारी रहती है। धीरे उसमें आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। 6 महीना अगर आप रिगरस कोई भी इसमें ट्रेनिंग करो तो यू कैन अचीव योर गोल। जैसे ओलंपिक्स स्पर्धा जो होती है साल में 4 साल में एक बार होती है। बड़े बड़े इंटरनेशनल एथलीट जो रहते हैं वो अगर 100 मीटर्स उसको भागना है 1 मिनट के अंदर यानी उसके सेकंड्स के नीचे, उसके लिए वो 4 साल तैयारी करता है। तो अपने को इवेंट के लिए अपना समय 6-8 महीना देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। जैसे आपने सुना, कोई भी ध्येय अभ्यास के बिना हम हासिल नहीं कर सकते। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको आपके वक्त का नियोजन करना है और नियोजन किए वक्त पे जो आपने ठान ली है वो आपको जरूर करना है। थोड़ा थोड़ा समय खुद को देना है और हम ये हासिल कर सकते हैं। 16 घंटे एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी करना इट्स अ ग्रेट थिंग। नाउ I request Ruchita to ask question to the sir. Over to you, Ruchita. My name is Ruchita Mahesh Rajendra. I am in 6A. My question is to you. Is there any particular food diet which you follow to maintain yourself? ये सबसे जरूरी है। क्या आप कोई विशेष आहार है जिसका पालन आपने स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए किया है? Over to you, sir. जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपको खाने का बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। 70% डाइट का रोल प्ले होता है किसी भी इवेंट के अंदर। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो या किसी को अपने हेल्थ के तरफ ध्यान देना हो तो डाइट बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। मेजर रोल डाइट का ही होता है। जैसे कि मैं विजय वल्लभ स्कूल से मैं एक जैन हूँ। आई एम कम्प्लीटली वेजिटेरियन, आई डोंट ईट एग्स ऑल्सो। तो अपने प्रोटीन के सोर्स अपने लिए दाल, पनीर ये सब खाना होता है। बाहर का जो अपन कचरा खाते हैं, बटाटा वड़ा, वो आपको सब बंद करना पड़ता है। प्रोटीन और अच्छा अपना घर का आप खाना खाओ, पनीर है, दाल से, ग्रीन वेजिटेबल्स है, जिससे आपको प्रोटीन अच्छे मिलते हैं। वो आपने फॉलो किया और वो अपने प्रॉपर डाइट लिया, तो प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। ये सब आपने खाया एंड एवरीथिंग, बाकी का सब आप जो खाते हो सेव है, फ्राइड आइटम्स है, वो आपको नहीं खाना है। थैंक यू सर। सर ने आज एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो एक लोगों के मन में एक बैठा रहता है कि हमें इससे ही ये प्रोटीन मिलेगा, हम नॉनवेज खाने से हमें ज्यादा ताकत मिलेगी, वैसा नहीं है। शाकाहार दुनिया का सबसे अच्छा आहार। शाकाहार से भी हम प्रोटीन्स पा सकते हैं, मिनरल्स पा सकते हैं। So, thank you, sir, for giving us valuable information. Over to you, Prathana. My name is Pratna Chaudhary. I am in standard 8th A. My question to you is, what message would you like to share with our viewers? Nice. Sir, इस माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? Over to you, sir. जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी व्यू है कि फिट इंडिया, तो अपने को तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है और अच्छी एक फिट लाइफस्टाइल अपने को जीनी है। उसी तरफ अपने को जीना है। ये फिट लाइफस्टाइल से मतलब आप सुबह एक्सरसाइज करिए, उससे आपका माइंड भी फ्रेश होता है, फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन। तो मेरा भी लाइफ में भी एक ही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिटनेस के तरफ अट्रैक्ट करना है। उनको बताना है कि स्पोर्ट्स करने से, फिटनेस करने से या वॉकिंग करो, कुछ भी करो तो आप फिट रहते हैं। डॉक्टर को आप साइड में रख सकते हो। अगर आपने अपने बॉडी पे ध्यान दिया, योगा किया, तो यू विल नेवर हैव टू गो टू अ डॉक्टर। सो स्टे फिट, और यही मेरा मोटो है। सही कहा सर। तंदुरुस्त शरीर ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अगर आप अपने शरीर को समय से ही सही रखोगे, उसका सही पोषण करोगे, उसकी तरफ सही से ध्यान दोगे,
तो आपको डॉक्टर के पास जाने का समय आएगा ही नहीं या कम से कम आएगा। सो इन्वेस्ट इन योर फिटनेस। वो बहुत ही सर ने जो मिडिल एज जिसमें बहुत कठिन है कि उस तरफ खुद को ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि ही इज अ गुड एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, सही से सब जा रहा है, लेकिन नहीं, जब उन्होंने ठान लिया, और सिर्फ ठानने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया है चलो अभी 2 दिन 3 दिन किया बस, नहीं, उन्होंने वो करके दिखाया और अभी भी वो कर रहे हैं। इन विद इन 6 डेज उन्होंने 2 बार ये किताब जीता है, मतलब 16 घंटे एक हफ्ते में 2 बार 32 घंटे उन्होंने वो एक्टिविटी की है 6 दिन के अंदर। सो उनका जो अभ्यास है उसकी वजह से उन्हें वो हासिल हुआ है। सो हमें ये मन में ठान लेना है कि अगर करना है तो करना है, उसके लिए अभ्यास के लिए हमें समय देना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स टाइम टू वॉच सर्स मोटिवेशनल वीडियो। यू रियली इंस्पायर। जब मैं मेरे फैमिली सोशल में जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं अरे क्या बुढ़ा दिख रहा है, और वही मैं अगर रनिंग ग्रुप में जाऊँ, अगर जिम ग्रुप में जाऊँ तो वो बोलता है व्हाट यंग यू आर लुकिंग। सो इट इज अ मेंटेलिटी, सो वी हैव टू गो विद पॉजिटिव थिंग्स। मेरा नाम हेमंत परमार है। I am now 47 years old. At present, I am into my family business. While doing my business, I am following my passion also. I am known as a triathlete. I swim, cycle and run. मैं शुरुआत से ही ओबेस था. My mother was also obese. My daddy was fit. When I was 16 years old, he was just 41 and by heart stroke he expired. I had to enter my business at the age of 16 only. So that time I was neglected towards fitness. पहले मैं बहुत ज़्यादा फूडी था। हफ्ते में 2-3 दिन मेरा आउटिंग होने का, जो भी शाम को फ्रेंड्स मिले, चलो वड़ा पाव खाना है, चलो मिसल खाना है, शाम को पार्टी जाना है दोस्तों के साथ। तो ये सब मेरा पहले से लाइफस्टाइल था। फिटनेस की तरफ मतलब कभी जाने का वॉकिंग को, कभी नहीं जाने का, ऑन एंड ऑफ था। सुबह 1-1.5 घंटा में वर्कआउट भी करने का, बट डाइट की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। मैंने लाइफ में 2 बार वेट कम किया, 2 बार वापस मैंने गेन किया। मुझे लगा कि एट अ पॉइंट कि अभी नहीं, मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही फॉलो करते गया तो इट विल हैम्पर माई लाइफ। तो एट दैट डे आई मेड अ डिसीजन दैट मुझे अभी फिटनेस के और बढ़ना है और मुझे फिट होना है। फिटर का इंट्रोड्यूस जैसे मैंने आपको बताया, मुझे अली इंजीनियर ने कराया, मेरे जिम के दोस्त, हम साथ में वर्कआउट करने के। फिटर का जब मुझे पता चला, मैंने फेसबुक के ऊपर उनका पेज ज्वाइन किया। जब उनका मैंने फेस के ऊपर लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन देखे और खुद अली का भी मैंने स्टोरी देखा हुआ है, वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे। मुझे लगा कि अगर ये सब लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। माइंड में मेरा एक था कि मुझे मेरा वेट मुझे कोई भी हिसाब में कम करना है, और मैंने अपना जर्नी फिटर के साथ चालू किया। तो मैं अनिकेत शेट्टी के अंडर पहले एनरोल हुआ था। 1-1.5 घंटा वर्कआउट करके और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके मैंने 15-20 किलो वजन कम कर दिया। तो ये सब चालू होने के बाद मेरा लाइफ ही चेंज हुआ है। मुझे क्लीन ईटिंग का हैबिट पता चला है, तो मेरा टोटल फिटनेस की तरफ और लाइफ की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया है। इट हैज चेंज माई लाइफ। लेकिन एट अ पॉइंट ऐसा लगा मुझे कि एक लेवल पे 75 पे आगे मैं बहुत टाइम तक अटक गया था, 1-2 साल तक। और उसी समय मेरा मैराथन रनिंग, साइकिलिंग ये सब शुरुआत हो गई। मुझे पता था अगर मैं डाइट स्ट्रिक्टली करूँ तो मेरा वेट कम होएगा। मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरा पैशन को जो समझे और मेरा डाइट उस हिसाब से करे। एक दिन ट्विटर के ऊपर मैंने जिज्ञासा मैम का वीडियो देखा। आई सॉ दैट शी वाज डूइंग योगा, शी वाज डूइंग रनिंग, लिटिल बिट ऑफ साइकिलिंग। सो इमीडिएटली आई मैसेज हर। मैंने उनको बताया कि मुझे रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, ये मेरा पैशन है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप मुझे एक डाइट डिजाइन करके दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम करते हैं। पहले का लाइफ और अभी के लाइफ में मतलब देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। मेरे तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी बदल गया है। जब मैंने जर्नी मेरा वेट रिड्यूसिंग का चालू किया, दैट टाइम माय वेट वाज 101 kgs। एट प्रेजेंट आई एम मेंटेनिंग इट एट 66 है, जो मेरा ड्रीम वेट था। दैट टाइम आई वाज वेयरिंग जीन्स ऑफ 38 and 40, टी-शर्ट XXL, XXL आई वाज वेयरिंग। नाउ आई एम यूजिंग 30-32 साइज जीन्स एंड टी-शर्ट आई एम वेयरिंग एक्स्ट्रा स्मॉल नाउ। आई एम प्राउड ऑफ मी दैट मैंने इतने ये एज के अंदर भी मैंने देखे आई हैव रिड्यूस माई वेट। सो होल डे व्हेन आई डू वर्कआउट आई एम पॉजिटिव। मेरा बिजनेस के अंदर भी देखने का नजरिया बदल गया है। अगर मैं 2 दिन वर्कआउट नहीं करूँ तो आई बिकम लिथार्जिक। आई वाज वेरी हॉट टेम्पर्ड, बट एज आई एम मूविंग टूवर्ड्स फिटनेस आई हैव इम्प्रूव्ड माई माइंड ऑल्सो। अगर अपने को खाना खाने को रोज चाहिए तो फिटनेस भी अपने बॉडी के लिए रोज चाहिए। आई फॉलो 3 Ds,
डिसिप्लिन, डाइट एंड डेडिकेशन। ये तीनों डीज अगर आपने फॉलो किया, एवरीबॉडीज लाइफ विल इम्प्रूव। इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, एज इज नॉट अ बार। अ मैन कैन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम एनी एज। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। हमने मिल्खा सिंह देखा। तो आज हमारे सामने लाइव मिल्खा सिंह, लाइव, जो हमारे सामने अभी भी है। सो आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो। अगर आपको आयरमैन बनना है तो उसका पूरा गाइडेंस आप सर से ले सकते हो। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल मैम टू शेयर हर व्यूज। ओवर टू यू मैम। Today, we had an outstanding personality, Mr. Hemant Parmar, for the webinar on an interesting topic, Be an Ironman. Hemant, we really appreciate you for sparing your valuable time with us. We are also proud of you for your outstanding achievements. Our viewers were inspired and motivated how to be a successful sportsman, what mindset we should have to become an athlete, how much time should be devoted for practice in a day. In the end, I would like to tell all the viewers, if you work hard, you can achieve anything. Work hard and never give up. Keep moving towards your goal. With this, I also thank our little one, the students who have joined us for today's webinar. Thank you. Over to you, Sonal. Thankfulness. Thank you, madam. Thankfulness is the beginning of gratitude, and gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. I, Sonal Khabia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, deem it with a great honor to propose a hearty vote of thanks. My heart fills with lots of gratitude and respect to thank our today's speaker, Mr. Hemant Parmar sir, for gracing the session with his inspirational and thought-provoking address and his valuable presence. A heartfelt thanks to our chairman, Sri Subhashji Parmar sir, committee members, trust members, principals, teachers, parents, and dear students for their enormous support. A special thanks to our technical team for their zealous efforts and unflinching support to make this webinar a resounding success. Thank you all the enthusiastic, active, and encouraging viewers for joining us to Facebook Live and appreciating us by your valuable comments. Thank you all and stay tuned with Vijay Vallabh Sunday Hour for more such fascinating and exclusive webinars. Have a nice day. Thank you. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Snehal Khataukar, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mrs. Sonal Khabia, Teacher, Mr. Abhijit Galsasi, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member, Ms. Daksha Dhalawat, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.